परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि भी जारी करने वाले हैं। Thunderous applause, Belagavi. Welcome, Shri Narendra Modi ji, our beloved Prime Minister, to your esteemed city. ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಜನನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೇ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. With due respects to the day, disciples of Swaranjali Sangeeta Samsthe will now present the state anthem, requesting one and all to please stand for the state anthem. ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಷಡಕ್ಷರಿ ಹೊನ್ನ ಸಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳ ಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ಸ್ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ ಕಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯವರ ಗಂಗಾ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಜ್ಞಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾರಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಂಗಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ. ಕರಕುಶಲ ನೇಯ್ಗೆಯ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಾಲನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. On behalf of the state, a hand-woven, naturally dyed, richly decorated shawl with a GI tag will now be presented to Honorable Prime Minister by our beloved Chief Minister. ಸುಂದರವಾದ ಕರಕುಶಲ ನೇಯ್ಗೆಯ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಶಾಲನ್ನ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿಯವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Specially designed cardamom garland will now be presented by
Honorable Member of Parliament Chikkodi, Shri Anna Saheb Jolle, and Shri Iranna Kadadi, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha. ಇದೀಗ ಪೇಟಾವನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. Turban will now be presented by Honorable District Minister and Minister of Irrigation, Shri Govind Karjola. ಸವದತ್ತಿಯ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹೊಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. An unique memento, a specially hand-stitched Modi ji portrait with more than 12.5 lakh stitches in thread to be presented to Honorable Prime Minister, Honorable MLA Belagavi North and Honorable MLA Belagavi South. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ, ಈ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು. Requesting Honorable Minister for the welcome address. बोलो भारत माता की। ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಡಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದಾನಗರಿಯಿಂದ ದೇಶದ 8 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕುಂದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, गांव गरीब किसान जय जवान जय किसान के साथ जय अनुसंधान के मंत्र और योजना समाज के हर एक वर्ग के लिए जन कल्याण योजना द्वारा सबके साथ सबके विकास का कीर्तिमान माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबके तरफ से मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं. बेळगाविಯ नवीकृत रेलवे स्टेशन घटप्रभा ಲೋಂಡಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಳದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎರಡೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 10-11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ಇರಲಾರದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ಲರ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸ್ವಾಗತ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನತೆಯನ್ನ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಸವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. May I now call upon Honorable Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, to deliver his speech. अभी मैं केंद्र मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रोग्राम के बारे में अपना वक्तव्य रखें. आज के इस महत्वपूर्ण मौके पर हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके प्रिय नेता, हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बसवराज बोम्मई जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, बहन शोभा जी, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशाल संख्या में हमारे इस क्षेत्र के किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोगों का निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य है कि फिर से एक बार पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के अलावा देश भर में अनेक स्थानों में 85 लाख किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। मैं उन सब 85 लाख किसानों की ओर से, मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। हम सभी कृतज्ञ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही, देश को आह्वान किया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को ही नहीं कहा, सरकार की भी योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रति किसान की आय बढ़ाने में सरकार की योजना से उन्होंने मदद की। इस कार्यक्रम को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम दुनिया का अपने आप में अभिनव कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी राशि लोगों के खाते में अंतरण हो, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक 12 किस्तों में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,24,000 रुपया राशि का अंतरण किया है और आज 16,000 करोड़ रुपए की वो 13वीं किस्त उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैलगांव की धरती पर पधारे हैं। अभी बटन दबा के वो 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। हम सब निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है तब से लगातार उनके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, गांव गरीब किसान की हालत कैसे सुधरे। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट
21,000 करोड़ रुपया होता था। आज मोदी जी के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 5 गुना बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपया हो गया है और इसका फायदा आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड। हर जगह गैप्स को भरने के लिए किसान दीर्घ काल तक खेती करे और मुनाफे की खेती करे, इसके लिए पर्याप्त निवेश की भी व्यवस्था की है। और साथ ही साथ जब इस बार बजट आया तो चाहे वो एग्री स्टार्टअप को मदद देने का मामला हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती का मामला हो, चाहे मिलेट्स ईयर को आयोजित करने का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कृषि के क्षेत्र को देने का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की फसलों को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे प्लांटेशन को बढ़ाने का मामला हो, हर विषय के लिए जो पर्याप्त प्रावधान किए उसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले कल में हमारे भारतवर्ष की खेती को मिलेगा। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के किसान भाइयों और बहनों को। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि क्षेत्र में योजनाएं और नीतियां चल रही हैं वो बराबर उनका लाभ ले रहे हैं और आज लाखों किसान जिनकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दिनों हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के आसपास हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह जो परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है कृषि के क्षेत्र में कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और कृषि उत्पादों में या तो पहले नंबर पर है या दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। यह सब माननीय मोदी जी की नीतियों के परिणाम स्वरूप संभव हो रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसान के घर में समृद्धि आएगी तो पूरे देश में समृद्धि आएगी। इसलिए हम सब मिलकर किसानों को आगे बढ़ाएं। और आज पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होगी। और मैं एक बात आप सब लोगों को और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक समय था जब सारी दुनिया योगा करे और योगा डे मनाया जाए। इस प्रस्ताव को माना गया था और आज दुनिया के अधिकांश देश भारत के योगा को अपना रहे। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि जो मिलेट्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न रागी, श्री अन्न ज्वार, ये मिलेट्स पूरी दुनिया में प्रचारित हो, व्यक्ति के भोजन की थाली में यह मिलेट्स प्रतिष्ठा पाए, इसके लिए पूरी दुनिया में 2023 को श्री अन्न मिलेट्स ईयर के रूप में मनाना चाहिए। 18 मार्च को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस मिलेट्स ईयर का लॉन्च करेंगे। मैं किसान भाइयों और बहनों को यह कहना चाहता हूं, मिलेट्स की उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, इस दिशा में हम चिंता करें और हम सब लोगों की कोशिश रहे कि मिलेट्स की खपत भी पूरे देश में बढ़े, दुनिया में हमारा निर्यात बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Our sincere thanks to Honorable Union Minister Shri Narendra Singh Tomar ji. I humbly invite Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai ji to address the gathering. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಈ ಜನಸಮೂಹ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಸ್ಮರಣೀಯ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ರೈತರ ಬಂಧು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ಜಿಯವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಕ್ಕಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅವರ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭೂಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 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 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು MSP ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ MSPನ 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸ ರೈಲ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ರೈಲಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇವತ್ತು ಭಗೀರಥ
ಭಾರತದ ಭಗೀರಥ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಇತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಶಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣ ಸೋಚ್, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಯಾ सोच भारत देश में लेके आया है. नया भारत अभी बन रहा है और अमृत काल जो है उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. जब भारत 100 साल स्वतंत्र रूप से बनाएगा तो विश्व मान्य देश बनेगा और उसका नींव अभी हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाल रहे. इंತಹ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅವರ ನಯ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾ ಕಿ. ಆದರಣೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जैसे कि केंद्र मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज का वर्ष है, तो आज के बाकी सारे योजनाओं को चालन देने से पहले गौरवान्वित प्रधानमंत्री जी 9 तरह के सिरिधान्य या मिलेट्स या पोषक अनाजों को अभी माटी में भरेंगे. 2023 being the International Year of Millets, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to pour 9 varieties of millets into the earthen pot in commemoration of the same and also as a symbol of harvest, prosperity and the native culture. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is now pouring 9 variety of millets into the earthen pot in commemoration of 2023 being the year of International Millets. 2023 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸುಗ್ಗಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕಣಜ ತುಂಬುವುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಾಡು ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 9 ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಾವ ಸಾರಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अब मैं भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट रिमोट के जरिए रिलीज करेंगे, जिसका मूल्य होगा 16,000 करोड़. With due respects to the chair, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. भारत का किसान समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बने और भारतीय कृषि आधुनिक और लाभकारी हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में समग्र और अथक प्रयास किए गए हैं. प्रधानमंत्री जी के संकल्पबद्ध नेतृत्व में बीज से बाजार तक, मिट्टी से लेकर सिंचाई तक,
खाद से लेकर फसल बीमा तक खेती के हर स्तर पर हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में हमारे अन्नदाता के द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन देश में खेती की लगातार बदलती तस्वीर को दर्शाता है। प्राकृतिक खेती हो या भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को पोषक अनाज यानी श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय खेती के साथ पर्यावरण और पोषकता के परस्पर समन्वय पर भी सरकार का पूरा फोकस है। किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की ऐसी ही एक अहम पहल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। पीएम किसान के तहत 2000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए ने एक नई ताकत दी है। जब खाद लेने का समय होता है, जब बीज लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थानों ने भी की है। डिजिटल प्रणाली के जरिए किसानों की पहचान से लेकर उनके खाते में रुपए भेजने का काम सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। डायरेक्ट खाते में आते हैं, वो फोन में मैसेज आ जाता है, सुनते ही बड़ी खुशी होती है। समय पे पैसे जब आ जाते हैं खाते में तो खाद बीज लेकर खेत की बुआई आराम से हो जाती है। ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। किसान साथी ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी पीएम किसान वेब पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप से हासिल की जा सकती है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 की मदद ली जा सकती है। 4 साल से लगातार चल रही इस किसान सम्मान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किसान हितों को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान की 13वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। समृद्ध देश, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। I solicit Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to dedicate to the nation and unveil the foundation stone of Railway and Jal Jeevan Mission project worth over rupees 2,240 crores. अभी भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डबलिंग ऑफ लोंडा बेळगावी घटप्रभा रेलवे लाइन, पुनर्विकसित बेळगावी रेलवे स्टेशन और जल जीवन मिशन का शंकुस्थापना करेंगे।
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆಯಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अभी भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि वो आज इस शुभ अवसर के बारे में अपना वक्तव्य प्रकट करें. In years is a reflection of new work culture in governance, resolute thinking and collective efforts. Under the inspirational leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Indian Railways has reinvented itself as the growth engine of modern India, making qualitative difference in the lives of citizens. भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्ति यादा भगवान बसवेश्वर ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನರ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿಹಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. बेलगावी की जनता का प्यार और आशीर्वाद अतुलनीय है. ये प्यार, ये आशीर्वाद पाकर हम सबको आपकी सेवा के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है. आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा शक्ति बन जाता है. बेलगावी की धरती पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता. ये कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और क्रांति वीर संगोली रायण्णा की भूमि है. देश आज भी इन्हें वीरता और गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए याद करता है. साथियों, आज की लड़ाई हो या फिर उसके बाद भारत का नवनिर्माण, बेलगावी की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है. आजकल हमारे देश में, कर्नाटका में स्टार्टअप्स की खूब चर्चा होती है, लेकिन एक तरह से देखें तो बेलगावी में तो 100 साल पहले ही स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई थी. 100 साल पहले मैं आपको याद कराने आया हूं. बाबूराव पुसालकर जी ने 100 साल पहले यहां एक छोटी सी यूनिट की स्थापना की थी. तब से बेलगावी अनेक तरह की इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेस बन गया है. बेलगावी की इसी भूमिका ने डबल इंजन सरकार इस दशक में और सशक्त करना चाहती है. भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी.
सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बेलगावी से पूरे हिंदुस्तान को भी भेंट सौगात मिली है। हिंदुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है, बेलगावी से जोड़ा है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है। और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने 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 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। साथियों, साल 2014 के बाद से
देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया तो भारत का कृषि के लिए बजट, ये आंकड़ा याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? जरा जोर से तो बोलिए, याद रखोगे? देखिए, जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए, आपने मौका दिया था, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। कितना? कितना? इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता, तो क्या ये सब संभव होता? क्या हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे। साथियों, इस वर्ष का बजट हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी एड्रेस करता है। आज की जरूरत भंडारण की है, स्टोरेज की है, कृषि में आने वाली लागत को कम करने की है, छोटे किसानों को संगठित करने की है। इसलिए बजट में सैकड़ों नई भंडारण सुविधाएं बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ सहकारिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभूतपूर्व फोकस किया है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नेचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समस्या आ रही है, ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा।
हमारा मोटा अनाज, और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है, और ये सुपर फूड है। मोटा अनाज सुपर फूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है। और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहां तो श्री अन्न को पहले से ही श्री धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री अन्न यहां का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है। मुझे याद है कि रैता बंधु येदियुरप्पा जी ने श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है, इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार खूब होती है। भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। शुगर कोऑपरेटिव्स द्वारा 2016-17 के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है, और इससे शुगर कोऑपरेटिव के ऊपर जो 10,000 करोड़ रुपए का बोझ था, जो यूपीए सरकार उनके सर पर डाल के गई थी, उन 10,000 करोड़ रुपए का फायदा ये मेरी शुगर कोऑपरेटिव को होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। भाइयों और बहनों, खेती हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं। इसलिए बीते वर्षों में हम कर्नाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। 2014 से पहले के 5 वर्षों में कर्नाटका में रेलवे का बजट कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए था, जबकि इस वर्ष कर्नाटका में रेलवे के लिए 7,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस वक्त कर्नाटका में रेलवे के लगभग 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इसके कारण कर्नाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेळगावी का आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर हर किसी को आश्चर्य भी होता है, हर किसी को गर्व भी होता है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन से यहां सुविधाएं तो अधिक हुई है, रेलवे को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन
पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। कर्नाटका के अनेक स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है। लोंदा घाटप्रभा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा। इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम शुरू हुआ है, वे भी इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क को सशक्त करेगी। बेलगावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा सेंटर है। ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाभ होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार तेज विकास की गारंटी है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण जल जीवन मिशन है। साल 2019 तक कर्नाटका के गांवों में सिर्फ 25% परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था। आज कर्नाटका में नल से जल की कवरेज डबल इंजन सरकार के कारण, हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयासों के कारण आज कवरेज 60% से अधिक हो चुकी है। यहां बेलगावी के भी 2 लाख से भी कम घरों में नल से जल आता था। आज ये संख्या 4.5 लाख पर पार कर चुकी है। हमारी गांव की बहनों को पानी के लिए भटकना न पड़े, सिर्फ इसी के लिए ही इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार समाज के हर उस छोटे से छोटे वर्ग को सशक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूद नहीं ली थी। बेलगावी तो कारीगरों, हस्तशिल्पियों का शहर रहा है। ये तो वेणुग्राम यानी बांस के गांव के रूप में मशहूर रहा है। आप याद कीजिए, पहले की सरकारों ने लंबे समय तक बांस की कटाई पर रोक लगा दी थी। हमने कानून बदला और बांस की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दिए। इसका बहुत बड़ा लाभ बांस का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है। बांस के अलावा यहां दूसरे क्राफ्ट का काम भी खूब होता है। इस वर्ष के बजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। इस योजना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। साथियों, आज जब मैं बेलगावी आया हूं तो एक और विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ
करने का प्रयास किया है। लेकिन वे उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। साथियों, जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। डबल इंजन सरकार की नीयत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है। इसलिए हमें इस विश्वास को बनाए रखना है। कर्नाटका के देश के विकास को गति देने के लिए हमें यूं ही आगे बढ़ना है। सबका प्रयास से ही हम देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे। और मैं आज यहां कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंचा, हेलीकॉप्टर से पूरे रास्ते पर बेलगावी ने जो स्वागत किया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, अभूतपूर्व दृश्य था। मैं बेलगावी के, कर्नाटका के इस प्यार के लिए सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, सर झुका करके उनका धन्यवाद करता हूं। आज की मेरी कर्नाटका की यात्रा भी विशेष है, क्योंकि आज सुबह मैं शिवमोगा में था और वहां पर एयरपोर्ट कर्नाटका की जनता को सुपुर्द करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का भी मौका मिला। और शिवमोगा से यहां आया तो आप सबने तो कमाल ही कर दिया। ये प्यार, ये आशीर्वाद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बेलगावी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्नाटका के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं ना,
आप जो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। और कर्नाटका का विकास करके लौटाऊंगा, बेलगावी का विकास करके लौटाऊंगा। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे